یہاں ایک طرف کنکریٹ کی بلند و بالا عمارتیں ہیں اور دوسری طرف توکل، اخلاص، علم و حلم میں گندی چھوٹی سی بستی ہے۔ یہاں کے فرش سنگ مرمر کے نہیں، لیکن وہاں چلتے قدم وہ آسمان کو چھوتے ہیں۔ یہ دو دنیاؤں کی اپنی اپنی انتہا ہے، جہاں ایک طرف مال و اسباب کی حرص ہے اور انہیں گن گن کر جمع کرنے کی ہوس ہے، تو دوسری جانب ان سے مکمل برات۔ اس کہانی کی ابتدا ہوتی ہے 1996 سے، جب سید بدیع الدین آغا کے والد محمد علی آغا سفر کے دوران سپر ہائی وے پر واقع ایک ہوٹل پر چائے پینے کے لیے رکے۔ ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ تو بردر، کیا کیا ہے اتنے دنوں میں؟ کورونا سب بیٹر ہے ادھر؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، کیونکہ یار عوام کا حال چال پوچھنا بنتا ہے، آپ کا بھی۔ آپ میرے سے پوچھو کیسے ہیں آپ کا۔ تو بردر، آپ آج کا جو اپنا ویڈیو ہے، اپنے کو دیکھ میں اپنی طرف سے پہلے ویڈیو ڈھونڈتا تھا، آج کل مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ آپ لوگ بھائی لوگ مجھے اتنا پیار دے رہے ہو نا، میرے کو خود ویڈیو ڈھونڈنے کے لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی ڈھونڈنے کی کہ ہاں یار ابھی جو میرے کو بھائی نے یہ جو ویڈیو بھیجا ہے وہ بھیجا ہے ٹیلے آف اے صوفی ہو ہیو ریجیکٹڈ این آفر آف 42 بلین فرام بینا ٹاؤن۔ تو یہ بینا ٹاؤن کا ویڈیو ہے، دیکھتے ہیں۔ اگلے ویڈیو پر لاہور وغیرہ پہ بھی لاہور ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، راولپنڈی کے لیے میرے کو لوگ بہت سارے بول رہے ہیں۔ سوری بھائی، میں نہیں بنا پایا تھا، لیکن میں نے بنانا اسٹارٹ کیا ہے، بناؤں گا، میں کیوں نہیں بنا پاؤں گا۔ لیکن یہ اسلام آباد کراچی والے بھائی ہے نا، یہ پکڑ کے بیٹھ گئے، وہی تمہارے بھائی ہیں میرے بھی ہے۔ تو بردر، میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کراچی والے بھائی ہو، لو یو، آپ نے بہت پیار دیا۔ ارے پورے پاکستان کے بھائی ہو، آپ نے بہت پیار دیا، دیتے رہنا میرے کو آگے بھی۔ تو یہ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لاہور والے بھائی میرے کو بہت سارے انہوں نے لنکس بھیجے ہیں، سب لنکس میں نے سنبھال کے رکھے ہیں، ایک ایک پہ میں بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پلیز ویٹ یار، ہاں، اور میں ڈالتا ہوں ویڈیو۔ ابھی یہ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ 1 سیکنڈ۔ تو 1 2 3 اسٹارٹ۔ 2030 سال تھا جب پاکستانی معیشت کی رگوں میں دوڑنے والے تمام تر سرمایہ کا رخ کراچی کی جانب تھا۔ اوکے اور یہ منزل تھی بحریہ ٹاؤن، کراچی۔ زمینوں کے سودوں میں راتوں رات لاکھوں روپے کروڑوں میں اور کروڑوں روپے اربوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ کھربوں روپے کی اس ریل پیل میں فقط ایک ہی شخص تھا جو بحریہ ٹاؤن کے دروازے پر بیٹھے ہونے کے باوجود اس سارے کھیل سے بے نیاز تھا۔ ملک ریاض کا وہ پڑوسی جس کے اکاؤنٹ میں لاکھ روپے بھی موجود نہ تھے، لیکن توکل اور قناعت کی مٹی میں گندے ہوئے اس قلندر کے پاس استغنا کی دولت اتنی تھی کہ پورے ملک میں کوئی ثانی نہ تھا۔ اس بوریا نشین شخص کا نام تھا سید بدیع الدین آغا، جو بحریہ ٹاؤن کے دونوں مرکزی دروازوں کے عین بیچ میں 15 ایکڑ رقبے کا مالک تھا۔ بحریہ ٹاؤن کی پیشانی پہ واقع اس زمین کی قیمت چند کروڑ سے شروع ہوئی اور پھر 42 ارب روپے تک جا پہنچی۔ بحریہ ٹاؤن کے سارے ہی بروکرز اس زمین کے در پہ تھے، لیکن اس شخص کے لبوں پہ فقط انکار تھا۔ اس شخص کی وہاں موجودگی ایک معمہ تھی، ایک ایسا راز جسے جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ بحریہ ٹاؤن کے اندر 26 کلومیٹر طویل شاہراہ بچھائی جا چکی تھی اور اس جنا کمرشل میں فقط 500 گز کے پلاٹ کی قیمت 14 کروڑ روپے تک پہنچ چکی تھی۔ بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹس میں ہر 3 ماہ بعد 12 ارب سے زائد کی رقم منتقل ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی اس شخص کو بحریہ ٹاؤن کی دولت خرید نہ سکی اور نہ ہی کوئی طاقت زیر کر سکی۔ اس کہانی کے کئی موڑ ہیں اور ہر موڑ پر ایک الگ ناقابل یقین داستان ہے۔ یہ ایک نئی دنیا کی کہانی ہے جو ظاہری آنکھ سے قدرے اوجل ہے۔ یہاں ایک طرف
कंक्रीट की बुलंद व बाला इमारतें हैं और दूसरी तरफ तवक्कल, इखलास, इल्म हलम में गुदी छोटी सी बस्ती है। यहाँ के फर्श संगे मरमर के नहीं, लेकिन वहां चलते कदम वे आसमान को छूते हैं। ये दो दुनियाओं की अपनी अपनी इंतहा है, जहां एक तरफ मालो असबाब की हिर्स है और इन्हें गिन गिन कर जमा करने की हवस है, तो दूसरी जानिब इनसे मुकम्मल बरात। इस कहानी की पता होती है 1996 से, जब सैयद बदियुद्दीन आगा के वालिद मोहम्मद अली आगा सफर के दौरान सुपर हाईवे पर वाक़े एक होटल पर चाय पीने के लिए रुके। इस होटल के बराबर में 1 एकड़ के प्लॉट पर अलम लगा हुआ था। इस प्लॉट के मालिक अमजद अली नकवी भी वहां आ गए। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद कहने लगे, आगा साहब, इस प्लॉट पर मेरा इरादा इमाम बारगाह बनाने का था। अब यह जगह आपके हवाले है और आप जो चाहें इस पर तामीर करें। आगा मोहम्मद अली ने इस प्लॉट पर मदरसा कायम करने का फैसला किया। इस वक्त यहाँ दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। पानी, बिजली, गैस समेत कोई बुनियादी सहूलत मैसर न थी। बदियुद्दीन आगा 14 साल हरम शरीफ में गुजारने के बाद कुछ अरसे पहले ही वतन वापस आए थे। उन्होंने अपने वालिद से कहा कि यहाँ कौन पढ़ने आएगा, और जो दूर दराज के गोट हैं, मुझे तो उनकी जबान भी नहीं आती। आगा मोहम्मद अली ने कहा, वक्त आएगा यहाँ शहर आबाद होगा। वालिद के हुक्म की तामील में बदियुद्दीन आगा चंद तालिब इल्मों के साथ कुछ अरसे में वापस यहाँ लौटे और खैमों में अपनी रिहाइश और मदरसा कायम कर लिया। यहाँ पीने को बोरिंग का कड़वा पानी मैसर था या पेट्रोल का वो बू वाला पानी जो टैंकर वापसी पर हैदराबाद से भरकर उनके लिए लाते थे। वीरान और बेयाबान इलाके में जिंदगी इंतहाई तकलीफ देती। कुछ अरसे बाद होटल के मालिक ने मस्जिद के लिए अपनी जगह अतिया की। शदीद गर्मियों की एक इंतहाई गर्म दोपहर थी। आगा मोहम्मद अली चूने से मस्जिद के लिए निशान लगा रहे थे। किसी ने अज़राहे मजाक कहा कि आगा साहब, इतनी बड़ी जगह पर किस लिए निशान लगा रहे हैं? यहां तो ढूंढने से बंदा नहीं मिलता, नमाज पढ़ने कौन आएगा? आगा मोहम्मद अली का चेहरा धूप की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उन्होंने मुखातिब को देखा और कहा, वक्त आएगा, यह जगह नमाजियों के लिए तंग पड़ जाएगी। अगले 12 सालों में होटल के मालिक के अलावा अमजद अली नकवी ने भी अपनी जमीन आगा साहब को फरोख्त कर दी। अब वो यहाँ 15 एकड़ रकबे के मालिक थे। 2007 में जब आखिरी जमीन खरीदी तो ब्याने के लिए आगा साहब ने अपनी एक पुरानी गाड़ी फरोख्त करके 2 लाख रुपए अदा किए। बकिया रकम की अदायगी का कोई जरिया नजर नहीं आता था। इसी असना में आगा साहब उम्रे की अदायगी के लिए गए। रोज़े रसूल पर हाजिरी दी और कहा, नाना जान, ब्याने की रकम दे चुका हूं, बकिया अदायगी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मस्जिद से बाहर निकले तो किसी शख्स ने आवाज दी और पूछा कि किस परेशानी में हैं। आगा साहब ने पहले मना किया, फिर ख्याल आया कि अभी रोज़े रसूल पर परेशानी का इजहार कर रहे थे और अभी इनकार कर रहे हो। आगा साहब ने अपनी परेशानी बिलाखिर बता दी। वो शख्स कुछ ही देर बाद वापस लौटा और पूरी रकम नकद हवाले कर दी। 2013 में जब बहरिया टाउन की तैयारियां शुरू हुई तो गांव गोट खाली होते चले गए। जिसकी जो कीमत थी वो उसने वसूल की, लेकिन ये मस्जिद और मदरसा अपनी जगह मौजूद रहा। लालच और खौफ के हथकंडे एक के बाद दीगरे आजमाए जाते रहे। जमीन की कीमत बढ़ती चली गई और बात करोड़ों से अरबों पर चली गई, लेकिन आगा साहब का इनकार इकरार में ना बदल सका। ये वो वक्त था जब इस वीराने से जरा परे नॉर्दर्न बाईपास पर आए रोज मुबैना पुलिस मुकाबलों में लोग मारे जा रहे थे और इनका सरगना बहरिया टाउन के लिए जमीन खाली कराने का गैर एलानिया जिम्मा उठाए हुआ था। बहरिया टाउन और जमीन के मालिक में यह कशमकश चलती रही और कोई 3 साल कबल बहरिया टाउन की इंतजामिया जमीन की खरीदारी से दस्तबरदार हो गई। बहरिया टाउन ये कीमती तरीन जगह क्यों ना ले सका? आगा साहब ने ये जगह क्यों फरोख्त ना की? तस्फिया कैसे हुआ? इन सवालात के जवाबात के लिए आगा साहब ने बात करने से माजरत कर ली। इनके एक करीबी जरिए ने बताया कि 4 साल पहले बहुत दबाव था।
पुलिस की भारी नफरी आए रोज घेराव करती थी। आखिरी दफा जब पुलिस ने भारी मशीनरी के साथ घेराव किया तो आगा साहब ने कहा कि हम अहले बैत को अल्लाह ने मजलूम बनाया है और हम कयामत तक मजलूम रहेंगे, इसी में हमारी कामयाबी है। लेकिन आप ये जहन में रखें कि जुल्म का नतीजा अच्छा नहीं होता। इस दौरान आगा बदियुज़्ज़मा उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो गए और वहां से पैगाम भिजवाया कि बहरिया टाउन वालों से बात करें। यहाँ मौजूद मदरसा के मुंतज़मीन ने मुलाकात की कोशिश की, लेकिन इन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। उम्रे से वापसी के बाद आगा साहब हज के लिए चले गए और वहां से दोबारा पैगाम भिजवाया कि हमारा फैसला हो चुका, अब किसी से राब्ता करने की जरूरत नहीं। हज से वापसी पर बहरिया टाउन की तरफ से राब्ते शुरू किए गए, लेकिन आगा साहब ने माजरत कर ली और कहा कि हमारा फैसला हो चुका। कुछ दिनों बाद आगा साहब को पैगाम आया कि मलिक रियाज मिलना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के मसाइल के बाइस मदरसा नहीं आ सकते, आप बहरिया टाउन आ जाएं। आगा साहब ने हामी भर ली। मुलाकात शुरू हुई तो मलिक रियाज ने कहा कि आप क्या चाहते हैं। आगा साहब ने कहा आप बताएं आप क्या चाहते हैं। मलिक रियाज ने कहा कि मुझे ये जमीन दरकार है। आगा साहब ने कहा कि जब मैं उम्रे पर गया था तो मुझे कहा गया इस मामले पर आपसे बात करूं, उस वक्त शायद मैं ये जमीन दे देता, आपने मुलाकात नहीं की। बाद में हज पर गया तो ये कहा गया कि जमीन फरोख्त नहीं करनी, फैसला हो गया है। अब आप अगर 1 इंच के बदले 1 करोड़ रुपए भी दें तो हम ये जमीन फरोख्त करने पर तैयार नहीं हैं। अगर बजोर कुव्वत लेना चाहें तो हम अपनी चादर कांधे पर डालकर चले जाएंगे। ये जमीन आपको मुबारक हो, हमें 1 रुपया भी दरकार नहीं। मलिक रियाज ने यह सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली और कुछ देर के बाद कहा कि हमारा इस जमीन पर कोई दावा नहीं और ना कभी आइंदा आपको शिकायत होगी। यूं 5 साल से जारी ये तनाज़ा 5 मिनट में खत्म हो गया। ये मस्जिद और मदरसा अपने वसी अहाते के साथ आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। बहरिया टाउन की तरफ से अपने इस पड़ोसी को फिल्टर शुदा पानी और बिजली मुफ्त फराहम की जा रही है। बहरिया टाउन के सामने अब 3 दरवाजे हैं। 2 पुरशकोह दरवाजे इस वसी दुनिया की तरफ खुलते हैं, जहां दौलत के रंग हैं, शान शौकत है, तमकनत है, राहतें और आसाइशें हैं। और दरमियान का सादा सा दरवाजा इस छोटी सी पुरवकार दुनिया की तरफ खुलता है, जहां इस्तगना की दौलत है, तवक्कल की तवंगली है, फकर है, कनात है, सकून और सकीनत है। और यकीन जानिए इस गोशे में राहत ही राहत है। ये वीडियो थी गाइस यार, बहुत इमोशनल करने वाली वीडियो थी। कोई दिल पे ले गया ना, मेरा दिल पे ले गया यार, सच बोल रहा हूँ मैं। 42 बिलियन नहीं बोल सकता यार, वर्ड्स नहीं मेरे पास बोलने के लिए। इतने सारे पैसे और खरबों रुपए उन्होंने उनको ऑफर कर दिए, जमीन दे दो, नहीं देनी। एक टाइम था तब उन्होंने बोला था कि हाँ मैं दे दे था, लेकिन उस समय तुमने नहीं मेरे को, तो उस समय में तुम मिलने नहीं आए, बाकी से मेरे को मना कर दिया गया कि नहीं देंगे। अब तुम इंच भर भी लोगे इसको करोड़ दोगे तब भी मुझे नहीं देनी है। अगर तुम्हारे को ज़बरदस्ती करना है तो तुम्हारे को मुबारकों का 1 पैसा नहीं चाहिए यार। कितने बड़े दिल के मालिक हैं वो। सल्यूट है ब्रदर। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।